Good morning. Am I audible? Dolly? Yes, sir. Okay. So let us wait for 1 to 2 minutes. Yes, sir. So are you getting the questions or solutions, whatever we are discussing? डोली आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? सर आवाज Am I audible? So am I audible? Yes, sir. Okay. So whatever we are discussing, so are you able to understand that? So I will not be able. So if you are not able to hear me, then please tell me. Okay. So I am sharing the questions again. So we have already done the questions from 1987 to 2008. We have gone through the questions up to 2008. So today so I think I have discussed this question in the class. Question number 57. So can anybody tell me the answer of question number 57?
Am I audible? Okay, let us move to the question 57. I think we have done this question 57, where we have calculated the power required or the efficiency. So power efficiency achieved by this modulation scheme. So we have already done the question number this 57. Okay, so we are going through the question number 58. This one. Suppose that the modulating signal is mt is equal to 2 cos 2 pi fmt, and the carrier signal is given as x of ct is AC cos 2 pi fct. Okay, so we have to find out, or we have to tell whether which of the conventional AM without over modulation. Okay, so next there will be options for you, and you have to tell that which of these modulation schemes has which is without over modulation. Okay, तो ओवर मॉड्यूलेशन का केस सभी लोग जानते हैं. व्हाट इज ओवर मॉड्यूलेशन? I think all of you know that what is over modulation. Okay, so okay, so the options are here. So are you able to see the options of question number 58? For question number 58, these are the options. Okay, so क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि which of these, so आप लोगों को ये दिख रहा हो कि these all are amplitude modulation questions for amplitude modulation, but you have to tell that which one of these is without over modulation. So we know the case of over modulation. We know that over modulation is when modulation index is greater than 1. Okay, this is the case of over modulation. We already know that. Right? So we have to find out in these cases that which one has the modulation index greater than 1. तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, दैट यहाँ पर सिर्फ AC MT cos 2 pi FCT सिर्फ दिया हुआ है. ओके, सो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशंस है वो किस किस फॉर्म में है. जो सबसे बेसिक इक्वेशन है फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट, सो ओके, सो इक्वेशंस फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप सभी को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही थोड़ा ध्यान रहेगा, और डेफिनेशन अगर आपको पता है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ध्यान में रहेगा. तो सो सिंपलेस्ट जो एक्सप्रेशंस है, ST that is modulated signal for amplitude modulation is very basic equation was AC 1 plus MT cos omega CT. Okay, this was the very basic expression. उसके बाद हमारे पास और भी एक्सप्रेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी है. ठीक है, जिसमें कि जो कन्वेंशनल AM है विच कंसिस्ट ऑफ the carrier as well as the two side bands is nothing but a cos of omega CT plus a AC MA. Okay, so this is AC MA by 2 cos of omega C plus omega MT plus AC MA by 2 cos of omega C minus omega MT. Okay, so we have these equations. Instead, we also have some equation. We have equation in terms of like S of AMT is AC cos of omega CT
1 plus ma cos omega mt. Okay, so we have these type of expressions. So तो हमें ये जो बेसिक एक्सप्रेशंस हैं, एक ये वाला एंड दिस वन द थर्ड वन. सो लेट अस नंबर इट सेकंड थर्ड. सो दीज आर दी बेसिक. तो ये जो इक्वेशंस आते हैं ये बेसिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही आते हैं, ठीक है ना. सो यहाँ पर जो ये ओमेगा एम टी, ये ओमेगा एम टी इज नथिंग बट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पार्ट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो हमारे पास ये सारे एक्सप्रेशंस हैं. नाउ वी कैन कंपेयर दीज इक्वेशंस विद द इक्वेशंस गिवन हियर इटसेल्फ. तो यहाँ पर हमें देखना है एम ए यहाँ आ रहा है. ओके, यहाँ पर एम ए है. सो वी कैन कंपेयर दीज इक्वेशंस बेस्ड अपॉन दी देयर वैल्यूज. तो यहाँ पर हम देखें ए सी एम टी कॉस ओमेगा कॉस 2 पाई एफ सी टी इज नथिंग बट दी ओमेगा सी. 2 पाई एफ सी टी इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा सी टी. तो हमने जो यहाँ पर ओमेगा सी लिखा है दिस इज 2 पाई एफ सी. सो ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी. तो हम देखें कि इस फॉर्म में हमें कौन सा दिख रहा है. एक यहाँ हमारे पास ये फॉर्म है. बी नंबर में देखें एक्स टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी. तो ये कहाँ दिख रहा है, ये हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है थर्ड वाला. अगर इस इक्वेशन को थर्ड वाले इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या दिखेगा, ए सी 1 प्लस एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी. तो यहाँ पर एम टी लिखा हुआ है. एम टी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक मैसेज सिग्नल है. मैसेज सिग्नल है मतलब क्या, मैसेज सिग्नल यहाँ पर जो दिया हुआ है ये मैसेज सिग्नल का मतलब क्या है. अगर हम इस ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बी वाले ऑप्शन के लिए देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा क्या, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी. ओके, सो अभी इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा देखें तो मान लें कि जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन में दिया हुआ है एम टी का वैल्यू. ओके, एम टी इज इक्वल टू 2 कॉस 2 पाई एफ एम टी और यहाँ एक सी टी इज इक्वल टू दिया हुआ ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी. तो एम टी का वैल्यू में ध्यान रखना, एम टी इज इक्वल टू 2 कॉस 2 पाई एफ एम टी. ओके, सो एम टी इज इक्वल टू, ओके लेट अस राइट इट हियर. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एम टी का वैल्यू दिया हुआ है 2 कॉस 2 पाई एफ एम टी. ओके, ये दिया हुआ है, ठीक है. सो यस, तो यहाँ पर अभी हम अगर देखें तो एम टी का वैल्यू अगर यहाँ पुट करें बी वाले ऑप्शन में तो व्हाट वी विल हैव एक्स टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी एम टी का वैल्यू कितना है 2 कॉस 2 पाई एफ एम टी और ए सी के साथ कॉस ओमेगा कॉस 2 पाई एफ सी टी है तो इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे कॉस 2 पाई एफ सी टी. ओके, सो अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी के 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर कॉस 2 कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में आ रहा है. तो लेट अस ब्रेक दिस. सो हमें क्या मिलेगा, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. तो ए सी हमारे पास बाहर यहाँ है और अंदर क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी. सो कॉस जो भी मिलेगा तो हम इसे 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस ए सी कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी, ये कंपोनेंट्स मिलेंगे हमें. ओके, अगर ये कंपोनेंट्स मिलते हैं
तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तो ये हो गया कैरियर वाला पार्ट, ये हो गया अपर साइड बैंड, और ये हो गया लोअर साइड बैंड वाला पार्ट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये सेकंड वाले के पास अगर चले जाएं, सेकंड इक्वेशन में देख लें, तो सेकंड इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, एस ऑफ ए एम टी ए सी कॉस ओमेगा सी टी ए सी एम ए बाई टू। तो यहाँ पर एम ए बाई टू का वैल्यू कितना आ रहा है सेकंड वाले ऑप्शन में, एम ए बाई टू, मतलब इनटू में यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एसी के साथ एसी के का कोएफिशिएंट अगर देखें तो हमारे पास क्या है, वी हैव द वैल्यू ऑफ एम ए बाई टू, मतलब एम ए बाई टू का वैल्यू कितना है 1। इसका मतलब क्या है, एम ए दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 2। तो ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आया किस केस में आया, फॉर ऑप्शन बी। बी ऑप्शन को देख रहे हैं तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 2 मिल रहा है, ठीक है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन सी। ओके, तो सी अगर देखें, सी के लिए, ओके, सो लेट अस टेक द एक्सप्रेशन सी। सी के लिए देखें तो सी में क्या दिया हुआ है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी बाई 4 एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ पर भी एम टी का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो सी ऑप्शन देख लें, इसे हम एलेबोरेट कर रहे हैं। एक्स टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी बाई 4 है यहाँ पर, तो ए सी बाई 4 हम लिख लेते हैं। एम टी का वैल्यू कितना है, एम टी का वैल्यू हमारे पास ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एम टी का वैल्यू ये दिया हुआ है, एम टी 2 कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 2 कॉस 2 पाई एफ एम टी, और इसके साथ में कॉस 2 पाई एफ सी टी है, कॉस 2 पाई एफ सी टी। ओके, सो अभी यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखें तो हमें क्या दिखेगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में फिर से आ रहा है। तो हमें ये एक्सप्रेशन जो मिलेगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी बाई 4। तो 2 कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में फिर से ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस ए सी बाई 4 कॉस ए माइनस बी, जहाँ ए और बी का वैल्यू आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ए इज 2 पाई एफ सी टी एंड बी इज 2 पाई एफ एम टी। ओके, सो मैंने जस्ट कंपोनेंट्स लिखा है, एक्चुअली हमें मतलब है अभी कौन से वाले पार्ट से, हमें अभी इस वाले पार्ट से मतलब है ए सी बाई 4। ओके, ए सी बाई 4। तो हमें यहाँ पर अगर ये जो हमारा सेकंड वाला एक्सप्रेशन है ए एम का, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी ए सी एम ए बाई 2, तो ये ए सी एम ए बाई 2 जो यहाँ आ रहा है, यहाँ अगर ए सी बाई 4 से कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एम ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4। सो एम ए का वैल्यू अगर देखें तो कितना आ रहा है, 1 बाई 2, 1 बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड वाले केस के लिए हमें क्या मिल गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 बाई 2, ठीक है। सो यस, तो हमें हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि कौन सा जो इसमें से ऑप्शंस हैं वो जस्ट वेट फॉर मिनट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is a conventional AM signal without over modulation। without over modulation मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसपे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 से कम हो। ओके, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 से कम हमें कहाँ दिख रहा है, तो बी वाले एक्सप्रेशन में in expression B, I think you can see that
इन एक्सप्रेशन बी, जो हम एक्सप्रेशन बी को सॉल्व किए तो उसके बाद हमें दिख रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू है दैट इज हाफ, मतलब एक से कम। एक से कम है मतलब इट इज द केस ऑफ अंडर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन का केस नहीं। तो हम यही पता करना था कि कौन सा ओवर मॉड्यूलेशन का केस नहीं है, तो सी विल बी दी राइट आंसर। अब अभी हम यहाँ पर भी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ए सी साइन 2 पाई एफ एम टी साइन 2 पाई एफ सी टी। तो इसे भी ए इंटू बी के फॉर्म में, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू साइन बी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। वी विल हैव दी same that type of equation what we have obtained here. So we can see the options for that. Okay, so I think we have done this question. Okay, can we move to the next question? Yes, sir. Okay. So here itself we have the next question. Question number 58. I think all of you can see this. Question number 58. Okay. The question number 59. Consider the angle modulated signal xt is equal to the average power of xt is. So what you can observe here. What you can observe here. Okay, we will come to this question later. We will come to this question later. Firstly, we will go through the next question. Okay, so question number 60. In this question, you have to match the following things. So can anybody tell me the what is the answer? I think all of you have gone through these things: conventional AM, FM, VSB, vestigial sideband modulation, and single sideband modulation. So इन सभी में से हमने देखा हुआ है, क्या क्या देखा हुआ? ओके, सी सिंपलेस्ट रिसीवर स्ट्रक्चर हमने देखा, पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, मोस्ट बैंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस सिग्नल्स, simplest receiver structure and bandwidth efficient transmission of signals with significant DC component. Okay, तो significant DC component हमें जो मिलता है, तो simplest receiver structure, तो हम C को देख सकते हैं. We have gone through this simplest receiver structure. तो simplest receiver structure किसका होता है? Conventional AM का होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर C से अगर मैच करें, C से 1 का मैचिंग इन 3 में दिख रहा है. तो we have again still we have so much of options. Okay, so bandwidth efficient transmission of signals, bandwidth efficient transmission of signals with significant DC component. So what where we see this, where we have seen this efficient transmission of signals with significant DC component? So we have seen this in VSB. Okay, we have seen this in VSB, vestigial sideband modulation. Okay, so we have again the third option, that is for D it is 3. For D it is 3. We are getting in 2 options. So now we have to see the A and B. So power efficient transmission of signals and most bandwidth efficient transmission of voice signals. Okay, so most bandwidth efficient transmission. So we have already seen this. What B is for? We have seen that the bandwidth, the most bandwidth efficient transmission is nothing but single sideband modulation. Okay, तो B के लिए 4 मिल गया. B के लिए 4 कहाँ है? B के लिए 4 यहाँ दिख रहा है. So now, so B should be the answer. For A, it should be 2. Power efficient transmission of signals will be FM. Okay. So for this, we have this one. Okay.
So it is a 1 mark question asked in 2011. Okay, let's move to the next question. Okay. Question number 66. So what you can see here, consider an FM signal where FT, the FM signal ये frequency modulated signal दिया हुआ है, which is cos 2 pi FCT plus beta 1 sin 2 pi F1T plus beta 2, यहाँ पर एक टर्म छूटा हुआ है, here should be यहाँ पर sin होगा, okay, sin 2 pi F2T. The maximum deviation of the instantaneous frequency from the carrier frequency FC is. So deviation पूछा गया है कि total deviation कितना होगा FC से. So deviation हम लोग जानते हैं, deviation जो होता है frequency modulation में, that is deviation from the what? Carrier frequency. जो भी deviate होता है frequency, वो कहाँ deviate होता है? That deviates from the carrier frequency only. Okay, so how we can see that? तो हमारे पास already available क्या है? हमारे पास already available क्या है? FT. FT is nothing but the frequency modulated signal. तो frequency modulated signal का जो equation होता है वो हमारे पास है क्या? Frequency modulated signal का जो simple expression है, that is FT is equal to FM. वो हमारे पास अवेलेबल क्या है ऑलरेडी? AC cos of 2 pi FCT plus theta या phi. ओके, सो ये जो हमें मिलता है, जो ये हमारा एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक सिंपल एक्सप्रेशन है. सो हियर यहाँ पर ये जो फाई दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस बीटा साइन 2 पाई F1T प्लस बीटा 2 साइन 2 पाई F2T. तो इस एक्सप्रेशन का इस एक्सप्रेशन से अगर कंपेयर किया जाए, सो वी विल हैव द फेज व्हिच इज इक्वल टू बीटा 1 साइन 2 पाई F1T प्लस बीटा 2 साइन 2 पाई F2T. ओके, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम डेविएशन. ओके, मैक्सिमम डेविएशन हमें पता करना है. सो डेविएशन होता क्या है पहले ये बताएं मुझे कोई. व्हाट इज मीन बाय डेविएशन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? तो डेविएशन इज डेल्टा एफ एंड दिस इज नथिंग बट del f by, sorry, delta f is nothing but kf of ft max. ठीक है, मतलब ft का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और kf का what this is the deviation. Okay, now how we can get this deviation? तो हम डेविएशन मतलब हमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन मालूम करना है. तो हमें हमारे पास अगर फेज एंगल है, सो वी कैन फाइंड आउट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी? वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा आई. द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट डी फाई आई बाई डी टी. तो फेज को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, देन वी विल हैव द फ्रीक्वेंसी. So let us differentiate this equation. So what we will get when we will differentiate this equation with respect to t? So we will have beta 1 is outside the differentiation, sine 2 pi F1T. So sine 2 pi F1T will become cos 2 pi F1T, और t का जो coefficient है that is 2 pi F1 will come into the product. सो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डिफरेंशिएशन में खुद ही माहिर हो. सो 2 पाई F1 cos 2 पाई F1T प्लस
बीटा 2, अगेन वी विल हैव साइन 2 पाई f2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन वी विल हैव 2 पाई f2 cos 2 पाई f2t। ओके, नाउ अभी यहाँ पर हमें मिल गया क्या, बीटा 2 पाई f1 cos 2 पाई f1t और बीटा 2 इंटू 2 पाई f2 cos 2 पाई f2t। तो अभी जो हमें मिला ये क्या मिला है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ अभी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ये मिला है, इस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में ये जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट kf ऑफ ft। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, cos 2 पाई f1t एंड cos 2 पाई f2t। सो अभी अगर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू भी जानना चाहें, देन दैट इज नथिंग बट 2 पाई f1 बीटा प्लस 2 पाई f2 beta. So this is the total deviation. So deviation due to this sign, तो ये जो instantaneous phase है, this is dependent upon multiple tone। यहाँ पर जो हमें सिग्नल दिख रहा है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये है। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स अवेलेबल हैं, तो दोनों के कारण ही जो डेविएशन आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम डेविएशन। अब अगर हमें डेल्टा ओमेगा मालूम है, सो व्हाट विल बी द डेल्टा एफ, डेल्टा एफ इज व्हाट, डेल्टा एफ इज डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई। ओके, सो डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई करेंगे तो इन दोनों में से 2 पाई कॉमन आ रहा है, सो 2 पाई कॉमन ले लें, हमें अंदर, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, f1 बीटा प्लस f2 बीटा। सो बीटा 1 बीटा 2 अलग अलग था ना, so here it should be beta 1, here it should be beta 2, so beta 1 beta 2, we have 2 pi in the denominator, so the deviation what we will get is f1 beta 1 plus f2 beta 2. Okay, so where we have got this f1 beta 1 f1 beta 2 f2, okay, beta 1 f1, so in option A we are getting this expression. Okay, so have you understood it? Actually हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो हमारे पास FM सिग्नल है, this FM सिग्नल is consist of two, ये जो यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, this मॉड्यूलेटिंग सिग्नल is of multiple tone सिग्नल। तो अगर मल्टीपल टोन सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, तो वहां पर जो डेविएशन आएगा दोनों सिग्नल्स के लिए अलग अलग डेविएशन आएगा, और जो मैक्सिमम डेविएशन होगा, दैट मैक्सिमम डेविएशन विल बी द समेशन ऑफ द सेपरेट डेविएशंस अकर्ड ड्यू टू मल्टीपल टोन सिग्नल्स। जो डिफरेंट टोनिंग है, जैसे f1 और f2 दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, दो अलग तरह के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स अवेलेबल हैं, तो उनके कारण अलग अलग डेविएशंस आएगा और दोनों का समेशन हमें मैक्सिमम डेविएशन देगा। ठीक है, so this is the expression. Okay, let us move to the next question, question 67. In double sideband full carrier AM transmission system, question number 67. In double sideband full carrier AM system transmission system, if the modulation index is doubled, modulation index को क्या किया गया, डबल कर दिया गया है, then the ratio of total sideband power to the carrier power increased by a factor of। तो हमें क्या निकालना है, टोटल साइडबैंड पावर, मतलब PT बाय टू द कैरियर पावर PC, ये हमें टोटल साइडबैंड पावर, सॉरी, टोटल साइडबैंड पावर मीन्स व्हाट, PS बाय PC हमें निकालना है। ठीक है, तो लेट मी चेंज द कलर, सो ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, बट कंडीशन क्या है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डबल्ड। तो m डैश अगर मान लें तो m डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, ma डैश इज ट्वाइस ऑफ ma, ये कर दिया गया है। तो अभी क्या होगा,
तो हमारे पास पावर का जो इक्वेशन है या पावर का जो एक्सप्रेशन है, वी ऑलरेडी नो दैट पावर इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. कैन एनीबडी टेल मी what is the equation for or the expression for formula for the power related with modulation index? How power is related with modulation index? पावर और मॉड्यूलेशन इंडेक्स में क्या रिलेशन है, कोई बताएंगे मुझे? बबीता, डॉली, whether anybody is there? So क्लास में कोई हो या फिर सभी लोग मोबाइल रखकर ऑन करके और इधर उधर हो? So this should not be the case. अनुष्का, ताकिर, ताकिर, so should I continue the class or leave the class? Okay, so I think nobody is hearing me. So if that is the case, so if you request to not do the classes, so there is no any need of classes. If you are not telling anything, or if you are just logging in and left the mobile, then I think there is no need of these classes. If you are not interested, okay, so I am completing it. And so the transmission system modulation index is double. So the modulation is double, MA dash is equal to twice of MA. So we already know that the total power is given by the total power PT is equal to PC 1 plus MA square by 2. So now we know that the total power, so the total power is what? PT, the PC plus PS by PC को नीचे ले आए, then we will have 1 plus MA square by 2. अभी यहाँ पर क्या किया गया है, PC plus PS, इसे हम अलग अलग कर दें तो PC by PC is 1 plus PS by PC, हमें यही निकालना है, ठीक है, is equal to 1 plus MA square by 2, 1 is cancelled out. So we have PS by PC is equal to MA square by 2. अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें PS by PC निकालना है, बट यहाँ पर एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डबल. मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब MA को अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2MA स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बाई 2, मतलब 4MA स्क्वायर बाई 2. मतलब पहले जो भी वैल्यू था उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स. मतलब PS by PC का जो रेशियो आएगा that will become 4 times. So the sideband power to the carrier power increases by a factor of 4. Okay. Okay then. So let us move to the next question. Consider
Question 68. Consider the signal mt cos 2 pi fct plus m dash t m cap t cos sin 2 pi fct. So this is the equation for single sideband amplitude modulation, but here there is no any option. So the best choice is the band pass signal. This is also the equation for the band pass signal also. Okay, so this as single sideband modulation is not given here, so ST is for the band pass signal. Okay, so let us complete the class here itself. So आज के लिए इतना ही. I think nobody is interested now, so I am wrapping up the class here. Okay then. So